tene diring Kargil la apex body le nang KDA Kargil niske parla ma tozdur ma gaspa song I spera tangches po tene KDA nang apex parla teo deak nang ngaja parla spera tang dukstein in nang I chokse spera gaspa che juna I nanga tene apex nang KDA member changma changri gyotpin I chokse meeting gaspa yang tuz ban chisting na song tempin tene I nanga mangcha tene tozdur chaches po ngata yung na prospera tangches po daksa ngata domicile law na yang spera chikni shika ngata khate yotenok tebo ma changme shkomong unchuks yang tene spera tangala 20 me boches pa ngaje changme welcome chospin gasu juspin in nang ibang changme shkomong unchuk se juna ibo isangan la chogo shotpin tus mangpo gorte mane ngata tene central government spera tang mabos tebe ka changme shkomong unchuk tene yang ngaje tebo rewachat tene yongche chane tene 20 me spera chache chan benanga tene ma tus mangpo gor magora tene domicile na yang spera tena na related lagma luste tebo gyoksa ngata thakchat tangste tene te sang tene ken la ngata changme sang khakchan ngata doton tangpo bo ngata nge statehood masla bo ma masla chenmo enok masla nispa bo ngata nge safeguard masla enok tene te ngiske ka ngaje focus choches ika changme thakchat tang che juna chamsik ngata rewayat pini employment skal bu gyospa thakchat tang chese tevena tusma gorji song tene ina amma mangpoji goratna tene ngaje government la tebu juches thakchat tang spin tene ngeja nam supa ibe ka consensus micha tene te ka shungste maduga tene ngata nge number 1 demand ka bo ngata nge statehood in tebe ka tene spera chaches yang tebang thakchat song tene ngata nge speragun transpo maluz na tene KDA nang apex niske tene Ladakh se na mass movement kazuga shulin zarkan bo shulches po thakchat tang kazuga shulin zarkan beka tene sting ne dukste ngata thakchat tang chezenok tebe kang diringi ka thakchat tang yang spera khakchan chikte bangsong tene I chokse meeting tene ngatang dunla dukste spera tang ches pol dena tene nyune sang nyun lachigina reremane chagos KDA na apex parla tebang thakchat song yang mane nyanches medna tene virtually ngatang dukste ante meeting bo choches innang tene parla ngaje meeting mane macho dukste manpin meeting jung song ten pin innang I chokse gaspa meeting bo tene ma tus mangpoji sting ne songten tebe ka tene changme thatpong unchugazats yang changme te lotun songte teo malazas tene ine angwa tene deka lanpokchik ngatang tukte spera tander kanbo tene yang spera laglus po tene nge Karbrai sahaba yuva phulun ko ne ngerang urdu na amolazat juste बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जैसा कि अभी दौरजे साहब चेयरमैन एपेक्स ने आपको डिटेल में बता दी कि काफ़ी देर के बाद एपेक्स और KDA की ये जॉइंट मीटिंग हुई, फिज़िकल मीटिंग हुई, जिसमें 4 पॉइंट एजेंडे के इश्यूज़ को लेकर तफसील डिस्कशंस हुआ और उसमें जो मेनली हमारे 3 एजेंडास हैं रिक्रूटमेंट, रिजर्वेशन, डोमिसाइल, PSC, फिर इसके बाद आपका 6 शेड्यूल और जो टॉप प्रायोरिटी पे हमारी है स्टेटहुड, उन पे काफ़ी डिस्कशंस हुआ। आप सभी जानते हैं 3 दिसंबर की मीटिंग के बाद 15 जनवरी की मीटिंग के बाद गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के होम मिनिस्ट्री के साइड लाइन पे हमारी मीटिंग हुई और उसमें रिजर्वेशन, डोमिसाइल पे हमारा इनके साथ बात हुआ, जिसमें ऑलमोस्ट 95% जितने भी हमारे सीट्स हैं वो लद्दाखियों के लिए रिजर्व रहेगा और 5% उन लोगों के लिए होगी
जो डोमिसाइल होल्डर्स हैं। और डोमिसाइल पे भी हमारा क्लियर कट यूनानिमस हमारी डिसीजंस हुई है और ये हमने कन्वे भी कर दिया है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को कि कट ऑफ डेट 89 है। 89 कट ऑफ डेट है डोमिसाइल के लिए, रिजर्वेशंस 95% और 5% आपके जनरल कैटेगरी के लिए। ये मैसेज हम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को कन्वे कर चुके हैं, लेकिन उनकी तरफ से आपका 15 मार्च को मीटिंग होनी थी, फिर इसके बाद अप्रैल में डेट देना था, वो भी नहीं हुआ। अब आया है 20 मई को इनकी तारीख हुई है। ये डिले गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से हुई है, होम मिनिस्ट्री की तरफ से हुई है, जो हम सोचते हैं कि लद्दाखियों के साथ उनका सही रवैया नहीं रहा है। अगरचे अभी 20 मई की मीटिंग हाई पावर कमेटी की फिक्स हुई है, हम आशावाद हैं, हम बहुत ही उम्मीद रखते हैं कि उस मीटिंग में ये जितने भी इश्यूज हैं रिक्रूटमेंट को लेकर, रिजर्वेशंस को लेकर, डोमिसाइल्स को लेकर, जो हम ऑलरेडी एपेक्स और केडीए इनको कन्वे कर चुकी है, वो फाइनल होकर डॉक्यूमेंटेशंस की शक्ल में आ जाएगी। और इसके बाद जो हमारा मेन इशू है वो है स्टेटहुड फॉर लद्दाख एंड 6th शेड्यूल फॉर लद्दाख। तो 20 मई की मीटिंग में हम ये उम्मीद रखते हैं कि ये सारी रिक्रूटमेंट प्रोसेस के जितने भी चीजें हैं जो कन्वे हो चुका है वो फाइनल होकर डॉक्यूमेंटेशंस होकर इम्प्लीमेंट होंगे। और उसी 20 मई के मीटिंग में जो हमारी फर्स्ट प्रायोरिटी, फर्स्ट डिमांड है, स्टेटहुड पे डिस्कशंस स्टार्ट होगी। साथ ही साथ अभी हम ये बात भी क्लियर करना चाहते हैं कि यूटी एडमिनिस्ट्रेशन, यहाँ से होम मिनिस्ट्री हमारे एपेक्स और केडीए के साथ बातचीत कर रही है और कंटिन्यूअस बातचीत चल रही है, जिसमें अभी का ये जो मीटिंग का गैप है वो बहुत ज़्यादा हुआ है। लेकिन इन बिटवीन हमारी यूटी एडमिनिस्ट्रेशन और स्पेशली चीफ सेक्रेटरी पवन कोतवाल जी साइडलाइन पे, चाहे वो अभी दैनिक वाला प्रपोजल्स हमने सुना कि ये लाने के चक्कर में है, इंडस्ट्रियल पॉलिसी को लागू करने के चक्कर में है, सोलर पॉलिसी प्लांट्स के नाम पे कुछ लगाने के चक्कर में है, ये सारी चीजें एपेक्स और केडीए को टोटली एक्सेप्टेबल नहीं है। और हमें लगता है होम मिनिस्ट्री के साथ, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के साथ जो टॉक्स चल रही है, हम सोचते हैं ये फ्रूटफुल टॉक्स होगी। उस टॉक्स को सबटाज करने की एक कोशिश है ऑन द पार्ट ऑफ यूटी एडमिनिस्ट्रेशन, स्पेशली चीफ सेक्रेटरी के पार्ट पे, जो लद्दाखियों को किसी भी कीमत पे एक्सेप्टेबल नहीं है। आज की इस मीटिंग में ये भी क्लियर हमारी यूनानिमस डिसीजंस हुआ कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के साथ जो 20 तारीख को मीटिंग होगी, उस मीटिंग का आउटकम क्या होता है, उस आउटकम में अगर लद्दाखियों के एस्पायरेशंस के हिसाब से वो आउटकम हमें लगता है आ रही है, और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अपनी सिंसियरिटी को और अपनी जो जिस तरह से वो इच्छा जाहिर कर रही है कि हम बहुत कुछ लद्दाख को देने जा रहे हैं, अगर वो रिफ्लेक्ट हुआ तो ये कंटिन्यू होगी। अदरवाइज फिर हमें मजबूर होगा मास लेवल पे पब्लिक को साथ लेकर एजिटेशंस करने पे। ये हमारी तरफ से क्लियर मैसेज है और ये हम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को भी कन्वे करना चाहते हैं, मीडिया के जरिए सारे लोगों को भी ये कन्वे करना चाहते हैं। साथ ही साथ हमारी इस ज्वाइंट मीटिंग में ये डिसीजंस हुआ है, केडीए और एपेक्स का एटलीस्ट वंस इन ए मंथ फिजिकल मीटिंग होगी, एक बार लेह में और एक बार करगिल में, ताकि कमिंग मीटिंग्स के जो आउटकम्स हैं उसके लिए क्या स्ट्रेटेजी बना लें, क्या लाएअमल बना लें और किस तरीके से अपनी मेन एजेंडा स्टेटहुड एंड 6th शेड्यूल को आगे लेके चले। उसके लिए कंटिन्यूअस हमारी मीटिंग होगी, 1 महीने के बाद फिजिकल मीटिंग होगी, अगर नहीं हुआ तो फिर वर्चुअल हम मीटिंग करके इन सारी चीज़ों पे डिलिब्रेशंस करेंगे, डिस्कशंस करेंगे और लाएअमल बना के हम आगे चलेंगे। हमें उम्मीद है कि 20 तारीख की जो मीटिंग होने जा रही है, हाई पावर कमेटी है जिसमें हमारी पूरी एपेक्स और केडीए के सारे मेंबर्स पार्टिसिपेट करेंगे, उसका डॉक्यूमेंटेशंस की शक्ल में रिक्रूटमेंट, रिजर्वेशन, डोमिसाइल, पीएससी, इन सारी चीजों को लेकर एक फाइनल डिसीजंस होगी और वो इम्प्लीमेंट होगा। और उसी मीटिंग में साथ ही साथ हम सबों की एम्फेसिस ये है
कि हमारा स्टेटहुड के एजेंडे पे डिस्कशंस हो ताकि ये सारी मैटर रिजॉल्व हो। तो हम उम्मीद रखते हैं कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जिस तरीके का रवैया अभी तक अपनाए हुए है इसमें से निकल के पॉजिटिवली लद्दाख की स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस को देखकर, लद्दाख की सेंसिटिविटी को देखकर, ज्योग्राफिकल जो पॉलिटिकल हमारी लोकेशंस, इन सारी चीज़ों को देखकर, जियो पॉलिटिकल लोकेशंस को देखकर लद्दाखियों की जो एस्पायरेशंस है कॉन्स्टिट्यूशंस के अंदर, आपके आइन के अंदर जो डिमांड्स कर रहे हैं, स्टेटहुड फॉर लद्दाख, 6th शेड्यूल फॉर लद्दाख, रिक्रूटमेंट, रिजर्वेशन, पीएससी, डोमिसाइल फॉर लद्दाखीज, इन सारी चीज़ों पे पॉजिटिवली कोई कंक्रीट डिसीजंस लेकर लद्दाखियों के एस्पायरेशंस पे खड़ा उतरेगी। और हम ये भी उम्मीद रखते हैं कि हमारी आवाम 2019 के बाद जिस तरीके से एपेक्स बॉडी और केडीए के हर रिक्वेस्ट पे साथ देती आई है, क्योंकि ये डिमांड किसी एक एपेक्स बॉडी का या केडीए का या इंडिविजुअल्स का डिमांड्स नहीं है, ये लद्दाखियों की प्रेजेंट को लेकर, लद्दाखियों की फ्यूचर्स को लेकर, आने वाले जनरेशन्स के सारे राइट और सारे हुकूक की प्रोटेक्शंस के लिए डिमांड्स हैं और ये एजिटेशंस हो रही है। आवाम भी भरपूर तरीके से केडीए और एपेक्स के इस डिमांड में साथ दे देगी और हमें उम्मीद है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हमें मजबूर नहीं करेगी, सड़क पे आए, एजिटेशन करे, प्रोटेस्ट करे, धरना दे दे। जैसे कि दोनों चेयरमैन ने यहाँ पे आज के जो मीटिंग का आउटकम और इस मीटिंग का मकसद जो है वो तफसीलन आप लोगों के सामने रखी। जैसा कि हम सबको मालूम है कि यूटी सेटअप होने के बाद लद्दाख के अवाम में जो खदशात पैदा हुई अपने फ्यूचर को लेके, अपने मुस्तकबिल को लेके, अपने आइडेंटिटी को लेके, अपने कल्चर को लेके, उसके बाद पूरे लद्दाख में केडीए बनी, एपेक्स बनी, उसके बाद एहतजाज भी हुई और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के साथ बातचीत का सिलसिला भी चली। लेकिन कहीं ना कहीं पार्लियामेंट्री इलेक्शन से पहले ये जो बातचीत का सिलसिला कहीं ना कहीं रुकी थी। इलेक्शन के बाद सब का एक ये था कि जो ये बातचीत का सिलसिला है जो है वो जल्द से जल्द शुरू हो, क्योंकि लद्दाख के अवाम ने, लद्दाख के लीडरशिप ने हमेशा से ये कहा है कि हम बातचीत के ज़रिए इस मसले का हल चाहते हैं, हम उसमें बिलीव करते हैं। हम बिलीव करते हैं लद्दाख को अमन रखे, लद्दाख में कोई ऐसे हालात पैदा ना हो, क्योंकि लद्दाख के स्ट्रेटजिक जो इम्पोर्टेंस है उसको भी मद्देनज़र रखते हुए और लद्दाख के जो आज तक जो हमारे वर्षा में हमें मिली है कि हमने एक अमन इलाके के तौर पे हमने इसको रखा है, उसको बरकरार रखते हुए हमने यही अनाउंस किया है कि हम पीसफुली और बातचीत के ज़रिए हम मसले का हल चाहते हैं। लेकिन बातचीत का सिलसिला एक बार फिर शुरू हुआ, हम सब लद्दाखियों ने इसको वेलकम किया और वेलकम के साथ साथ एक उम्मीद भी जागा और एक गवर्नमेंट के से एक तवक्का भी रखा कि इस बार की जो बातचीत है तब तक ये ख़त्म नहीं होगा जब तक लद्दाख के अवाम के मुताबिक उनके मसाइल का हल कहीं ना कहीं ना निकले। लेकिन बदकिस्मती से सब कमेटी का जब लास्ट मीटिंग हुआ उसके बाद दूसरे मीटिंग का जो ये था उसमें बहुत गैप हुआ। उस गैप के वजह से हमारे लीडरशिप हो या हमारे लद्दाख के अवाम हो, ख़ासकर हमारा जो यूथ नौजवान तबका है उनमें एक बहुत ये पैदा हुआ। तो आज कुछ दिन पहले मैं होम मिनिस्टर साहब से भी मिला था, ये सारी चीज़ें उनके सामने हमने रखी थी। एक डेट आज निकला है 20 तारीख को, आज सब ने उसका भी वेलकम किया है। लेकिन इस बार अब ये लद्दाख की आवाम हो या लीडरशिप हो, अगर इस मीटिंग में कहीं ना कहीं कुछ जो हमारे तवक्कात के मुताबिक अगर इसमें कुछ ये नहीं होती है, आगे इसका ये नहीं होती है, तो मुझे अफसोस की ये कहना पड़ रहा है कि उसके बाद, क्योंकि एक हद तक जो है लद्दाख के अवाम जो है वो बर्दाश्त कर पाएगा, लेकिन उससे आगे जो हमारे अपने लीडरशिप के हाथ में भी नहीं रहेगा। क्योंकि अगर एक बार फिर, क्योंकि बहुत साल हो गए हमारे नौजवान इतने परेशान है, अवाम इतने परेशान है, तो मैं उम्मीद करता हूँ, तवक्का भी है, यकीन भी करता हूँ और गवर्नमेंट से अपील भी करता हूँ कि जो इस बार बैठ रहा है, हम एक मीटिंग हो रहा है, इस मीटिंग से कोई ना कोई नतीजा जो है वो
लोगों के सामने आए, लोगों को दिखे, ताकि जो इन्वायरमेंट, जो पीसफुली, जो अमान के जो फ़िज़ा जो लद्दाख में बनी है वो बरकरार रहे। अदरवाइज़ अगर इस मीटिंग से भी अगर कुछ लद्दाख के आवाम को कुछ अगर नहीं दिखता है तो मजबूरन फिर सड़कों पे आना पड़ेगा, जैसे कि हमारे को चेयरमैन दोनों ने बताया है। लेकिन हम एक बार फिर कहते हैं, हम चाहते हैं कि बातचीत के ज़रिए अमन अमान बरकरार रखते हुए हमारे मसलों का हल निकले। और ये है कि हमें पता है, हमारे जो नौजवान तबके हैं उनकी परेशानी समझते हुए हमने जो रिक्रूटमेंट और बाकी चीज़ों को प्रायोरिटी पे रखा है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हमारा बाकी जो 2 एजेंडा है, इस बार हमारा तीनों एजेंडे पे हमने बात करनी है। और तीनों जो बच्चों का ये परेशानियां है, लेकिन जो इम्पोर्टेंट जो इश्यूज़ है, हमारे बाकी 2 जो इश्यूज़ है उस पर भी बातचीत हो और जल्द से जल्द जो है इन मसाइल का कोई ना कोई हल निकले। ये मैं ज़ाती तौर पे भी MHA से, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से मेरी गुजारिश है, इस बार ये जो मीटिंग हो एक फ्रूटफुल मीटिंग हो और लद्दाख के आवाम के मुताबिक ये जो है इसमें कोई हल निकले। कोई क्वेश्चन से बता। पहले कुछ खबरें आ रही थी कि एपेक्स के लिए जी HPC के मेंबर्स के साथ MHA के कुछ लोगों ने जम्मू में भी बातचीत किया है, क्या बातचीत हुआ है वहाँ पे? डिसीजन मेकिंग वाला बातचीत हुआ? साइड लाइन पे वही जो मैंने आपको बता दी, उसमें रिजर्वेशंस में कैसे होंगे, क्या क्या क्राइटेरियाज हैं, बाइफर्केशंस कैसे होगी, 80% ST के लिए है, 4% ALC के लिए है, 1% SC है, 10% EWS है, रिमेनिंग 5% आपका जनरल कैटेगरी के लिए। फिर इसके बाद डोमिसाइल पे हमारे इनके साथ मीटिंग हुई, इसमें होम जॉइंट होम सेक्रेटरी भी वहाँ पे थे और होम के वहाँ पे स्पेशल डायरेक्टर्स भी थे। वहाँ पे कैटेगरी के लिए हमने कहा डोमिसाइल्स पे 89 हमारी कट ऑफ डेट है, उससे आगे पीछे हम नहीं जाएंगे। और रिजर्वेशंस के जो अभी मैंने आपको बाइफर्केशंस करके डाटास दे दिए, उस पर बात हुई और ये चीज़ें हम कन्वे कर चुके हैं। यानी ये तकरीबन हम मार्च में इनको कन्वे कर चुके हैं। फिर इसके बाद अप्रैल में इनके साथ मीटिंग हुई, उस वक्त भी हम कन्वे कर चुके हैं। इसलिए हम चाहते हैं कि 20 तारीख के मीटिंग में कंक्रीट हमारे पास डॉक्यूमेंटेशंस में कोई ना कोई चीज़ें हाथ में आनी चाहिए। सर, तकरीबन 3 महीने का गैप हुआ है KD एपेक्स और MHA के साथ जो डायलॉग होना था, तो इस बीच में स्पेशली KD और एपेक्स का इतना यानी मीटिंग्स चालू करके पब्लिक के साथ इतना कॉन्फिडेंस बिल्ड करके भी नहीं दिखा। आवाम में दुश्वारी बहुत थी कि KD और एपेक्स भी इतना लीडरशिप जो है आगे नहीं बढ़ रहा है। तो इसके ऊपर मैं एक चीज़ आपको क्लियर कर दूं, जैसा कि अभी आपके साथी ने कहा, हम 4 मार्च को ही एपेक्स और KDA की कोर कमेटी वहाँ पर मिली। उससे पहले हमारी एपेक्स और KDA के कोर कमेटी की मीटिंग हुई। उसके बाद 4 अप्रैल को भी हमारी एपेक्स और KDA की पूरी वर्चुअल हमारी मीटिंग हुई है। ये मिलते रहते हैं, लेकिन अभी तक जितने भी चीज़ें डिले हुआ है और डिले टैक्टिक्स की गई है, ये होम मिनिस्ट्री की तरफ से है और UT एडमिनिस्ट्रेशन की जो इंटरफेरेंस है, सारी चीजें मैं फिर एक बार आपको क्लियर कर दूं, ये UT एडमिनिस्ट्रेशन की स्पेशली हमारे चीफ सेक्रेटरी जो इंटरफेरेंस करा के ये चीजें कर रहे हैं, उसकी वजह से ये सारी चीजें डिरेल होने का खतरा है। इसीलिए हम अभी सोच रहे हैं ये 20 तारीख की जो मीटिंग है उसमें फाइनल आउटकम हमें आ जाए। और साहब, ex-MP की तरफ से एक स्टेटमेंट काफी सर्कुलेट हो रहा था कि 1964 में जो डोमिसाइल है उस बेसिस पे जो है होम मिनिस्टर बातचीत कर रहे हैं, तो क्या रिएक्शन अपना चाहिए? देखिए, ये वाला जो 1954 की बात जो हमने सुनी, वो हमने पहली बार सुनी। ऐसा बात तो हमने पहले कभी सुना नहीं था। तो अगर ये बात सही है, मान लेते हैं हम 1954 का उन्होंने ऑफर दिया है होम मिनिस्ट्री ने, तो हम बिल्कुल राज़ी हैं, उसको हम मानेंगे, उसको वेलकम करते हैं। 1954 का कट ऑफ डेट रखें आप, तो हमारे लिए ज़्यादा बेहतर है 1989 से, तो इसको तो हम वेलकम करते हैं। इसमें अभी मीटिंग में भी हमारी डिस्कशंस हुई है और बीजेपी लेह के जितने भी मेंबर्स हैं बढ़ चढ़ के इस चीज़ को ये हाईलाइट करने की कोशिश कर रहे हैं। हम इनको अपनी तरफ से, KDA और एपेक्स की तरफ से, हम खुद यहाँ से इनको ये कह रहे हैं, अगर 54 गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने मान ली है तो पूरा एपेक्स और KDA आपके साथ है। आप 54 को गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से यस करा के डोमिसाइल बना के